All honor belongs to only Jesus. We are nothing without Jesus. We stand here because of you, my God. And Lord, use us for your glory. प्रभु हमारा इस्तेमाल कर ताकि आपके नाम का रोशन होना चाहिए, आपके नाम, आपका नाम का गौरव होना चाहिए। इस वक्त में आज का दिन जो हम सब मना रहे हैं, आजादी का दिन, 15 अगस्त हम सब खुशी मनाते हैं। यहाँ जगत के लोगों ने युद्ध लड़कर हमें आजादी दिलाई तो हम खुश हैं। But are we really free is the question. Are we really free from all the bondages? We are free only when God made it possible. It's only Jesus who went on the cross, who surrendered himself, whose blood was flowing so that today you and me can be free. It's only he who did it possible. Without Jesus, we are nothing. If you think you are something, we are nothing. Nothing without Jesus. No matter how much money you have in your bank account, it doesn't matter what status you carry, it doesn't matter how big your church is, it doesn't matter where you belong, it doesn't matter which caste you're coming from, but if you do not have Jesus inside you, you're empty. You're empty. आज हम एक वचन की ओर जाएंगे। रोमन्स 8 निकालो। मैं चाहती हूँ कि कोई हिंदी या मराठी में पढ़े ताकि सबको समझ में आए। आज हम आजादी के बारे में बात करेंगे। कौन सी आजादी पर हमें ध्यान देना जरूरी है? ये जगत का आजादी तो हमने पा लिया, लेकिन जो आजादी परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है, क्या हम सच में आजाद है कि नहीं? Just as Peter was in the jail, his chains broke, he was free only because God decided to make him free. Are we free today? Are we free today? Are we close to Jesus? Did we really come out of all the bondages that the devil has prepared for us? Are we totally out of every dungeon we have fallen into? It is a matter of something you need to think about, because what matters is, are you living in the Spirit? हमने आजादी कहाँ पाई है? कहाँ पाई है आजादी? सोचो वो दिन जब प्रभु क्रूस के ऊपर थे, उन्होंने अपना लहू बहाया ताकि आप और हम आजाद रहे। उसी दिन हमने आजादी पाई है। उसी दिन हमने आजादी पाई है जब प्रभु स्वयं अपने जीवन को त्याग, he sacrificed his life so that we can be free today. He's bought us time. He's bought us time before Judgment Day so that we can choose, decide, prepare ourselves and be ready for the Judgment Day. But are we actually prepared is a question. It is a question. You need to ask yourself where you stand today. What is lacking? It's not the money. It's not the luxurious life. God doesn't bother where you're coming from. He does wonder, do you belong to Him? रोमन दिकारात 8 में जाएंगे। 6 पढ़ेगा कोई? 6 और 7। कारण देह स्वभावाचे चिंतन हे मरण, पण आत्म्याचे चिंतन हे जीवन व शांती आहे। कारण देह स्वभावाचे चिंतन हे देवाबरोबर वैर आहे, ते देवाच्या नियमशास्त्राच्या अधीन नाही आणि त्याला तसे होता येत नाही। जे देहाच्या अधीन आहेत त्यांना देवाला प्रसन्न करता येत नाही। आमीन। सिंपल, यहाँ पर सबूत है। वचन कह रहा है, अपना बाइबल कहता है कि आत्मा में चलो, देह में नहीं। इसका मतलब क्या है? अपना जिंदगी, our life should be spiritual. When we walk, we need to thank the Lord. When we wake up, we need to praise the Lord. Wherever we go, whatever we do, it has to be only Jesus. When you start your day, it has to start with a small prayer, saying, Lord, I thank you for this day. You give another life into my day.
बैठ जाते हो कि ये पास्टर है लेकिन इसकी कितने मंडली है, ये सिस्टर है लेकिन ये सच में पास्टर है। आपको परखने का हक किसने दिया है? Who has given you the authority? Matthew chapter 7 verse 1 says, judge not and ye shall not be judged, condemn not and ye shall not be condemned. यही वचन और एक जगह लिखा है वचन में लूक 6:37 में, judge not and ye shall not be judged, condemn not and ye shall not be condemned. परखने का आदत छोड़ दो, क्योंकि हम एक दूसरे से कभी अच्छे हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम प्रभु से पूरे बने नहीं अब तक। Till the time we are not filled with the Spirit, we are empty. वचन कहता है जब तक आपका जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म, आप स्वर्ग के राज्य में कदम नहीं रख सकते। आजादी तो वो है जहां आपको सार्वकालिक जीवन ही तुम्हारी आजादी है। यहाँ की आजादी आजादी नहीं है, ये थोड़े समय का आजादी है, जहां आपका देह, आपका शरीर जब तक 70-80 तक जीता है, उसके बाद क्या? कयामत का दिन किस लिए है? वचन कहता है I will open your grave and lift you up again, क्योंकि हर एक का हिसाब हर एक को अकेले देना पड़ता है। क्यों हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं? अपना मन, वचन कहता है ना कि आपका भार जो आप दिखते हो, प्रभु को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। अंदर आप कैसे हो, प्रभु को उसमें इंटरेस्ट है। How you are inside, how good you are inside. Sugar-coated person is not likable unto the Lord, because He likes the person who is humble from inside out. जो नम्र अंदर से बाहर, वही व्यक्ति प्रभु को भाता है। रोज जब आप उठते हो, यही सोचना है कि आज प्रभु मुझसे कोई गलती ना हो, प्रभु मेरे दिन को संभालो, प्रभु मेरे से कुछ अच्छा कर्म करो। कहा तो भी मैं नम्र बनूं, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं यहाँ पर आकर, जीकर, रहकर बताए कि हमें कितना नम्र रहना जरूरी है। प्रभु किन लोगों के बीच में बैठते थे? लुटेरे, डाकू, वेश्या लोगों के बीच में। लोगों ने नाम नहीं रखा, आप इनके बीच में क्यों बैठते हो? The Lord says, this is my place. I have come for these people. प्रभु ने कहा यही मेरी जगह है, क्योंकि वचन कहता है जो एक खोया हुआ है उसी पर मेरी जान अटकी है। प्रभु उसी का फिक्र करता है जो खोया हुआ है, लेकिन हमेशा के लिए मत खो जाओ। Don't be lost forever, because Lord is in seeking for you, because He is always wandering and searching for the lost soul. He is more interested in the ones who are lost. Lord is always waiting. He is ready to take you, but are you ready? Are you ready to live a spiritual life, or you want to still carry on carnally? Maybe outwardly you want to show you're happy, but God actually knows you from inside out, what we are. गणना में लिखा है, your sins will find you. Beware, your sins will find you. जब आप पाप करते हो तो वो छुपता नहीं है, हर कुछ दिखाई देता है। हमको लगता है यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ ठीक चलता है, जिंदगी चलेगी, अच्छा रहेगा, बैलेंस करेंगे, हम प्रार्थना करो, थोड़ी देर के बाद करेंगे, उपवास करो, मुझसे नहीं होता, बाइबल पढ़ो। बाइबल में अगर आपको सवाल पूछो, हमेशा मैं पूछती हूँ, किसने पूरा बाइबल पढ़ा? कोई भी हाथ ऊपर नहीं करेगा। आई एम श्योर, किसने पढ़ा है? हाथ ऊपर करो। यही है जवाब। ये चीज हमें, ये हमारी तलवार है, इसे पूरा पढ़ना जरूरी है। मैं पूरा पढ़ चुकी हूँ, मैं लिखना शुरू कर चुकी हूँ, क्योंकि हर वक्त जब मैं पढ़ती हूँ, पवित्र आत्मा मुझसे बात करता है। The Holy Spirit talks, क्योंकि ये जीवित हर एक शब्द जिंदा है। हमें ऐसे जिंदा रहने की जरूरत नहीं है जहां हमको सार्वकालिक जीवन नहीं मिल रही है। हमको वो जिंदगी जीना है जहां हमें सार्वकालिक जिंदगी मिल रही है। लेकिन आपको ये दुनिया के बोझों ने नीचे दबाया है, क्योंकि आपको बाकी की चीजें नहीं दिख रही है। उन चीजों को हटाओ तो परमेश्वर दिखेगा, क्योंकि सकारात्मक विश्वास रखोगे ही तो ये जिंदगी अच्छा चलेगा, क्योंकि परमेश्वर को हर एक चीज पता है। हमें क्यों बार बार लिस्ट बनाना है? आगे बढ़ेंगे ब्रदर। 8, 9 जे देहाच्या अधीन आहेत
त्यांना देवाला प्रसन्न करता येत नाही. परंतु तुमच्यामध्ये जर देवाचा आत्मा वस्ती करत आहे तर तुम्ही देहाच्या अधीन नाही, आत्म्याच्या अधीन आहात. जर कोणाला ख्रिस्ताचा आत्मा प्राप्त झालेला नसेल तर तो ख्रिस्ताचा नाही. आमीन. यहाँ पर क्लियरली कहा जाता है, अगर आप आत्मिक जिंदगी नहीं जीते हो, हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते. तो नहीं, ये जीना ही बेफूस का जीना है, सही जीवन नहीं है. अगर हमको सच में जिंदगी जीना है तो आत्मिक जिंदगी जीना जरूरी है. आत्मिक जिंदगी वही सच्चा जिंदगी है, वही सच्चा जीवन है. That is your actual living. Your ordinary lifestyle that you're living is not life. How long you're going to take to come to Jesus? He's always standing right close to you. When you want to hold his hand, he's always stretching out his hand. But our hand doesn't go front. Bible says, put one step ahead, 99 steps will come after you. Follow me, everything will follow you. Cast your burden upon the Lord, for he cares for you. But we don't want to cast the burden on the Lord. We take the burden on us and we are burdened. We are always disturbed. We cannot concentrate on our prayer. We cannot actually sit in fasting. I can tell you there are many people who don't sit in fasting. But fasting has to be a habit if you are serving God. Fasting has to be a habit if you are a child of God. Reading Bible, prayer should be your habit. No one needs to tell you, because every time पवित्र आत्मा हमेशा तुम्हारे अंदर कहता है बाइबल पढ़ो, प्रेयर करो, उपवास करो. लेकिन हम उस आवाज को ना करते हैं क्योंकि हमको शॉर्टकट में सब कुछ चाहिए, तुरंत चाहिए. इसलिए आगे बढ़ेंगे ब्रदर. 10, 11, 12, 13, 14 और खत्म करेंगे. 10, 11, 12, 13, 14. पण ख्रिस्त तुमच्यामध्ये असेल तर शरीर जरी पापामुळे मेलेले आहे तरी आत्मा नीतिमत्वामुळे जीवन आहे. ज्याने येशूला मेल्यातून उठवले त्याचा आत्मा जर तुमच्यामध्ये वस्ती करतो तर ज्याने ख्रिस्त येशूला मेल्यातून उठवले तो तुमच्यामध्ये वस्ती करणाऱ्या आपल्या आत्म्याने तुमची मर्त्य शरीरे जिवंत करेल. तर मग बंधुजनो, आपण तृणी आहोत खरे, तरी देह स्वभावाप्रमाणे जगायच्या देह स्वभावाच्या तृणी नाही. कारण जर तुम्ही देह स्वभावाप्रमाणे जगलात तर तुम्ही मरणार आहात, परंतु जर तुम्ही आत्म्याने शरीराची कर्मे ठार मारली तर जगाल. आमेन. आमेन. 14 पढ़े ब्रदर. 14. कारण जितक्यांना देवाचा आत्मा चालवत आहे तितके देवाचे पुत्र आहेत. आमेन. जो प्रभु का आत्मा चलाते हैं, they are the sons of God. वो ही प्रभु के बच्चे हैं, क्योंकि आत्मा की जिंदगी ही सच्ची जिंदगी है. ये देही जिंदगी में कुछ नहीं रखा है. थोड़े समय का आनंद है, बाद में फिर से रोना है. लेकिन एक दैहिक जिंदगी का इंसान अगर चलेगा, उसके जेब में 10 रुपए नहीं रहेगा, लेकिन यीशु मसीह है जेब में, इसलिए वो खुश रहेगा. और वो बोलेगा इंसान अगर इसके पास कुछ नहीं फिर भी इतना खुश क्यों है? क्योंकि जीसस उसके साथ है, आत्मा उसे चलाता है, तो उसके किसी दुनियादारी की चीजों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा. लाइफ चेंज हो जाए. बॉर्न अगेन इन क्राइस्ट का मतलब क्या है? अपना पुराना दैहिक जिंदगी को पीछा छोड़कर नई जिंदगी जीना. लिविंग अ स्पिरिचुअल लाइफ. खुद को ऐसा महसूस होना चाहिए, पहले मैं ऐसा था, अभी मैं ऐसा हूं. दैट इज अ चेंज. तभी जाके हम प्रभु के राज्य में कदम रख सकते हैं. एक आखिरी वचन पढ़ेंगे, 2 Corinthians 3:17, और मैं क्लोज करूंगी बिकॉज़ वी डोंट हैव मच टाइम. वी हैव टू कट द केक. ब्रदर तब तक आप केक का अरेंजमेंट करो, इसके बाद हम केक कटिंग के सेरेमनी में जाएंगे. प्रभु आत्मा आहे आणि जेथे प्रभूचा आत्मा आहे तेथे मोकळीक आहे. आमेन. फिर से पढ़ो. आज आजादी का दिन है. ये वचन पर ध्यान दो. सब जन यहाँ पर ध्यान दो. सिस्टर ध्यान दो जरा ये वचन पर फिर से. प्रभु आत्मा आहे आणि जेथे प्रभूचा आत्मा आहे तेथे मोकळीक आहे. आमेन. अगर आप सच में आजाद होना चाहते हो, प्रभु के आत्मा के साथ ही आजादी पाने वाले हो. आमेन. अगर आप आजादी पाना चाहते हो, ओनली विद द स्पिरिट ऑफ गॉड. प्रभु का आत्मा कहाँ है, वहां पर छुटकारा है, फ्रीडम. All answers to all your question is only Jesus. But it's time to surrender to God. Then only Jesus is going to come into your life. He's always waiting. क्योंकि उन्होंने हमको एक ही चीज दिया है, will.
Is it your will to walk to me? Is it your will to hold my hand? Is it your will to call my child? That is what Lord says. I will call you my child, but are you ready to become my child? Are you ready to surrender your life? Are you ready to live a spiritual life? आजादी वो है जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलते हो, वही आजादी है। और इस वचन के अनुसार मैं विश्वास करती हूँ कि ये वचन हर एक को चुभा होगा और मन के अंदर बात किया होगा। अगर किया है तो प्रभु से बात करेंगे। इस वक्त हम अपने नेत्र को बंद करेंगे। प्रेयर नहीं, इस वचन यहाँ पे हुए जो 3 लोगों ने वचन दिया है, ये 3 वचन आपके अंदर ग्रहण होकर आजादी पाने की ओर चलना चाहिए। आपके कदम आजाद होने के लिए, जहां पर प्रभु के आत्मा, पवित्र आत्मा ने आपको चलाना है। अपने आंखों को बंद करो, अपने मन को प्रभु की ओर लगा। लॉर्ड जीसस, वी ऑल कम इन अकॉर्डेंस टू यू मास्टर। हम सब आपके पास आते हैं क्योंकि हम आजाद हैं। हम सब आजाद हो गए प्रभु, तेरे लहू से हम आजाद हुए प्रभु। आजादी हमने पाई है प्रभु। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, हर एक जो 3 वचन यहाँ पर हुए हैं प्रभु, हर एक वचन को हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं। उस अनुसार चलने के लिए आप हमें मदद करो प्रभु, और आपकी ही योजना अनुसार हमारे कदम चले प्रभु। वचन पढ़ने के लिए हमारी इच्छा तैयार करो प्रभु। उपवास में बैठने के लिए हमें तैयार करो प्रभु। पूरा बाइबल पढ़ने के लिए हमें भूख दिलाओ प्रभु। आत्मिक बोझ हमारे अंदर लाओ प्रभु। स्पिरिचुअल बर्डन मास्टर फॉर यू माय लॉर्ड। हम अपनी जिंदगी को त्याग देते हैं प्रभु केवल आपके लिए, और हमारी जिंदगी केवल आपके लिए ही होगी। सारे वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आप हम सबसे बात किए हैं, हमारी नहीं, किसी की नहीं, केवल आपकी ही इच्छा पूरी हो जाए। और ये प्रार्थना मैं प्रिय प्रभु क्रिस्त के नाम से मांगती हूँ प्रभु। आमीन। इस वक्त हम केक कटिंग